Dear and students, in previous videos we studied about fraction, its types, equivalent fraction, comparison of fractions, addition, subtraction, multiplication and division of fractions. Now today we will learn about word problems based on previous whatever we done that on the basis of that. So in this question is Manju had 12 pieces of a chocolate. She gave 1/4 of it to Raji, 1/3 to Sugartha and 1/6 to Sheila. She ate the remaining part. How many pieces of a chocolate did each get? What part of the chocolate did Manju eat? So for that, first of all we have to read the question carefully. Now try to find out what question is asking. In that based on the whatever information given in the question. So first of all we know total number of pieces of a chocolate कि कितने pieces लिए हैं chocolate के. Here is Manju had 12 pieces of a chocolate. So total number of pieces of a chocolate is 12. Now next step is we have to find share of Raji. So share of Raji is 1/4 of out of 12. So here 1 multiplied by 12 upon 4. 12 1 12 upon 4. So 4 3 12. 12 3 pieces. Out of 12 3 pieces Raji got. Now next one is share of Sugartha. What is the share of Sugartha is? Here 1/3. So 1/3 out of 12. So 1 multiplied by 12 upon 3 square to 12 1 12 upon 3. 3 4 12. So 4 pieces out of 12. Sugartha got 4 pieces out of 12. Next one, share of Sheila. What is the share of Sheila? 1/6. So 1 upon 6 out of 12. So 1 multiplied by 12 upon 6. 12 1 12 upon 6. So 6 2 12. So 2 pieces. Sheila got 2 pieces. Now all together they got. All together we have to add all pieces of the earth. So 3 plus 4 plus 2 is equal to 3 plus 4 is 7. 7 plus 2 is 9 pieces. Total they got 9 pieces. We have 12 pieces. So share of Manju. टोटल शेयर जो है आपका 12 पीसेस हैं. तो अब उसमें से 9 पीसेस इन लोगों को मिल गया है. तो अब कितने रिमेनिंग हैं, कितने बचे हुए हैं? 3 पीसेस. तो जो रिमेनिंग पीसेस थी यहाँ पे था 8 द रिमेनिंग पीसेस. तो रिमेनिंग पीसेस किसे मिल गई? मंजू को मिल गई. और उसको कितना? मंजू 8 3 पीसेस. सो आउट ऑफ 12 मंजू 8 3 पीसेस. Now the next question is, if Arun used 1/3 of a day for sleeping, 1/4 of a day for studying and 1/8 of a day for playing, what part of the day does he use for other activities? In this also we have to find out first of all how many hours are in a day. So a day has 24 hours. एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24. Now find out the hours. इसके बाद में फाइंड करना है कितना हम स्लीपिंग में यूज़ कर रहे हैं, कितना आवर्स स्टडिंग में यूज़ कर रहे हैं और कितना प्लेइंग में. फॉर दैट जो पहले हमने क्वेश्चन में किया था वही प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करना है. सो स्लीपिंग आवर्स गिवन 1/3. So 1/3 out of 24. So 24. Same thing, 1 multiplied by 24 upon 3. 24 1 24 upon 3. 3 8 24. So 8 hours. Next one, studying hours.
studying hours is given 1/4 of a day. So 1/4 out of 24. So 1 multiplied by 24 out upon 4. 24 बन जाए 24 upon 4. Now read the table of 4. 4 6 are 24. So answer is 6 hours. Next one is we have to find the number of hours for playing. Playing is 1/8 of a day. So 1 upon 8 out of 24. So 1 multiplied by 24 upon 8. 24 बन जाए 24 upon 8. Now 8 3s are 24. So 3 hours. For sleeping 8 hours he has taken, for studying 6 hours, and for playing 3 hours. So he has taken total here these much hours. So altogether he used 8 plus 6 plus 3 is equal to 8 plus 6 is 14. 14 plus 3 is 15. So 17. 8 plus 6 is 14 plus 3 is 17. 17 hours. So 17 hours. Hours for other activities. Out of 24 hours, he used 17 hours. So 24 minus 17 hours answer is 7 hours. So 7 hours are left for other activities. So Arun uses 7 hours for other hours in a day for other activities. So it is clear. Now the next question is, an empty vessel weighs one whole number 2/5 kg. Riya puts 2 whole number 1/10 kg of flour in the vessel. What is the total weight of vessel and flour together? Here is we have to find total weight. For total what we have to do? Addition. टोटल के हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं. तो हमको सबसे पहले क्या करना है, इसमें स्टेटमेंट लिखना होगा कि जो मटेरियल हमें इसमें दिया हुआ है उसको पहले हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट हम आगे फर्दर उसको वर्कआउट करते हैं, सम्स को क्या करना है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट वेट ऑफ एन एम्प्टी वेसल. एम्प्टी वेसल का वेट क्या है यहाँ पर? 2/5 kg. Now weight of a flour is 2 whole number 1/10 kg. हमें क्या करना था? टोटल मीन्स एडिशन. हम इसे क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का ऐड करके फाइंड आउट करेंगे. नाउ हियर आई हैव राइटेड हियर 1 whole number 2/5 प्लस 2 whole number 1/10. अब हमने इसको लिख लिया, बट दिस सम्स इज इन मिक्स नंबर. मिक्स नंबर को हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं. फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो फॉर दैट आपको पता है कि कैसे करना होता है. सो 5 multiplied by 1, 5 बन जा 5 प्लस 2 7/5. जब इसको हम इम्प्रॉपर में कर रहे हैं तो ये हमारा आंसर आ रहा है 7/5. नाउ द नेक्स्ट वन इज 10 2 जा 20, 20 प्लस 1 21, 21/10. सो आंसर इज 21/10. आपको ये फ्रैक्शन मिल गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. बट अब इसको हमको ऐड करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, तो हमारा क्या यहाँ पे ये लाइक फ्रैक्शन नहीं अनलाइक फ्रैक्शन मिला हमें यहाँ पे. फिर से देखिए डिनोमिनेटर आपके डिफरेंट है, इट मीन्स ये अनलाइक फ्रैक्शन है. इस अनलाइक फ्रैक्शन को जब तक हम लाइक फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट कर लेते तब तक हम ऐड नहीं कर सकते. फॉर दैट अब हम इसमें क्या निकालेंगे, डिनोमिनेटर्स के एलसीएम फाइंड आउट करेंगे.
एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम 5 और 10 का पहले क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम फाइंड आउट करना भी मैंने आपको सिखा दिया है। अब यहाँ पे मैंने 5 और 10 लिख दिया है। हम स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी आप सीख रहे हो। सो 2 से स्टार्ट किया, 5 में 2 का टेबल 5 में नहीं जाता है, एज इट इज़ कॉपी कर लिया आपने। फिर 2 का टेबल 10 में जाता है, तो यहाँ पे अगर 2 5 10 5 आ गया। अब आपको सेम नंबर 5 मिलेगा तो आप 5 से ही इसका टेबल करके निकाल सकते हो। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, जब तक आपको करते रहना जब तक कि लास्ट में 1 ना मिल जाए। अब आपस जो डिवाइजर जिसका टेबल पढ़ रहे थे आप उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो आपका एलसीएम होगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 10। 10 इज द एलसीएम। हियर एलसीएम ऑफ 5 and 10 इज 10। नाउ अब इस एलसीएम के अकॉर्डिंग हम इस अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो 10 को हम डिनोमिनेटर के प्लेस पे रख देंगे। अब 5 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ते हैं कि 10 आता है। सो 5 इसमें है 5 2 जा 10। सो आप न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर इज 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 7। नाउ नेक्स्ट वन इज 10। ऑलरेडी आपका यहाँ पे 10 है, तो 10 को हम 1 से डिवाइड करते हैं, या आप कहें एज इट इज़ आप इसको रख भी सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपका यहाँ पे चेंजेस नहीं है। तो 10 है, आपका ऊपर था 21। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या मिल रहा है, 2 7 जा 14 अपॉन 10 प्लस 21 अपॉन 10। अब आपका लाइक फ्रैक्शन आ गया। लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होता है। यहाँ पे 10 10 है, इसका मतलब ये लाइक फ्रैक्शन है। अब इसको आपस में आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। 14 प्लस 21 अपॉन 10। सो जब 14 को 21 में ऐड करते हैं तो आपका आ रहा है 35 अपॉन 10। 35 को हम रिड्यूस कर सकते हैं लोएस्ट टर्म में, तो उसको हम 5 से इसका टेबल पढ़ेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। तो आपको आ गया ये फ्रैक्शन आ गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी आता है तो हम उसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 3 जा यहाँ 2 का टेबल हम 3 टाइम्स पढ़ेंगे। 2 से इसको डिवाइड किया आपने, 3 जा 6 जा है, 3 आपका होल नंबर बन गया। जो रिमाइंडर बचा था 1, 7 में से 6 को माइनस किया तो आपका ये आ गया रिमाइंडर, और डिवाइडर आपका ऑलरेडी है। तो ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन। नाउ आंसर इज 3 1/2 kg is the total weight of the total weight of vessel and floor, all together. Now the next question is, a drum contains 50 whole number 5.9 liters of water, 9 whole number 5.6 liters of water is used. How much of water is left in the drum? Left जब भी आता है इसमें होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब आपको माइनस करके आंसर को फाइंड आउट करना होता है. फॉर दैट सेम थिंग वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट. क्वांटिटी ऑफ वाटर और ड्रम कंटेन, कितना वाटर है ड्रम के अंदर उसको लिखेंगे हम यहाँ पर. नेक्स्ट वन, क्वांटिटी ऑफ वाटर इज यूज्ड, इट इज रिटन हियर. आफ्टर दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट. अब इसमें से आपको 50 होल नंबर 4.9 में से 9 होल नंबर 5.6 को माइनस करना है. बट यहाँ पे फिर से आपने देखा जैसे एडिशन में था, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन आ गया. अब इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम चेक करेंगे कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन है. जब यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शन आ रहा है देन वी हैव टू फाइंड आउट एलसीएम. एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर को चेक करते हैं, हम लोग लेते हैं. तो यहाँ पे 9 और 6 है, तो 9 और 6 का हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करने का. ये भी आपको पता है प्रोसेस क्या है, कैसे आप फाइंड आउट करोगे. तो 9 6 का जब हम एलसीएम निकालते हैं हमारा एलसीएम आता है 18. सो आफ्टर दैट सेम वही प्रोसेस है. यहाँ पे आपका 139/9 है,
इस 9 के प्लेस पे हमने यहाँ पे 18 रख दिया, एलसीएम रख देते हैं। एलसीएम जब रखते हैं तो जो यहाँ 9 था उस 9 से उस एलसीएम को डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमने 9 से 18 को डिवाइड किया तो आंसर हमारा है 2। 2 से हम क्या करेंगे 139 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे माइनस साइन है तो पुट माइनस साइन, प्लस साइन होगा तो प्लस साइन, माइनस साइन होगा तो माइनस साइन, अकॉर्डिंग दैट यू हैव टू डू। सो यहाँ पे फिर आपका आ गया 6 है, 6 से 18 को जब डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, 3 से हम न्यूमरेटर को 59 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 278/18 माइनस 177/18। अब इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 101/18। इसको हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर होता है तो, नहीं होता है हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड करके एज इट इज़ छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको मिक्स फ्रैक्शन नहीं हो रहा है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में एज इट इज़ हमने इसको छोड़ दिया है। सो 5 होल नंबर 11/18 लीटर्स ऑफ वाटर इज लेफ्ट इन द ड्रम। कितना ड्रम में है आपका ये 5 होल नंबर 11/18 लीटर्स ड्रम में अभी वाटर बचा हुआ है। तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपका सेम है, बट आपका क्या करना है, जहाँ पे ऐड करना है वहाँ साइन बस चेंज होती रहती है। अकॉर्डिंग साइन आपका प्रोसेस सेम है, आप सम कर सकते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन 6/7 of the total students passed. If the total students are 42, then how many students failed? मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, उसमें से कितने स्टूडेंट्स टोटल पास हुए वो दिए हुए हैं, हमको नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स का बताना है, कितने स्टूडेंट्स फेल हुए। सो यहाँ पे है तो लिखना है आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके 42। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास क्या फ्रैक्शन है आपका 6/7। तो पहले पास्ट स्टूडेंट के नंबर्स को फाइंड आउट कर ले। सो यहाँ पे है 6/7 आउट ऑफ 42, देन 6, आप इसको 42 देन 6/7। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, हमको बताया था पहले भी, इजी वे में हो जाएगा। 7 × 7, 7 × 6 = 42। तो अब आपके पास नंबर्स मिल गए 6 6 6 मल्टीप्लाई बाय 6/1, तो इसको हो गया 36/1। लेकिन जब हम होल नंबर में लिखते हैं तो हम सिर्फ 36 लिखते हैं। इट मीन्स 36 स्टूडेंट्स क्या हो गए, ये आपके पास्ट हैं। अब इसके बाद है आपको बताना है फेल्ड स्टूडेंट्स का नंबर। तो टोटल आपके पास है देयरफॉर 42 माइनस 36 = आपका आ गया 6। 6 स्टूडेंट्स क्या हो गए आपके, यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स आपके ये फेल्ड स्टूडेंट्स के नंबर मिल गए आपको। तो आपका आंसर है यहाँ पे आंसर 6 स्टूडेंट्स are failed. Now in this question, Rita cuts 54 meters of tape into pieces, each of length 3 whole number 3/8 meters. How many pieces does she get? In this, total length of a tape is given and length of one piece is given. We have to find out number of pieces. इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो स्टेटमेंट लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ द टेप इज 54 मीटर, लेंथ ऑफ ईच पीस, वन पीस का लेंथ कितना है 3 होल नंबर 3/8। इट इज गिवन इन द मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो आंसर इज 27/8 मीटर। नाउ वी हैव टू डिवाइड, बिकॉज हमको नंबर ऑफ पीसेस फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं टोटल में से डिवाइड कर देते हैं। टोटल आपका 54 मीटर है। जब हम होल नंबर में 54 को लिखते हैं तो उसके नीचे हम फ्रैक्शन नहीं 1 नहीं लिखते हैं, लेकिन सभी होल नंबर के नीचे 1 एज अ फ्रैक्शन डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ पे जब हम फ्रैक्शन में होल नंबर को लिखेंगे तो 54/1 हो जाएगा। अब डिवीजन साइन लगाएंगे और आपका जो ईच पीस का लेंथ है उससे उसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ अब इसके बाद हमने आपको बताया था रेसिप्रोकल 54/1 फर्स्ट नंबर एज इट इज रहेगा, फिर हम डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे और जो आपका 27/8 है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो हो जाएगा 8/27। अब इसको यहाँ पे हमने फिर से लिखा, रेसिप्रोकल करने के बाद हमें मल्टीप्लिकेशन का मिल गया
अब अकॉर्डिंग द मल्टीप्लिकेशन वी हैव टू डू हियर। सो क्रॉस में चेक करिए आप, 27 का टेबल हम यहाँ पे 1 बार पढ़ेंगे और 27 2 जा 54 होता है, तो हमने 27 से 54 को कट कर दिया यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे 2 और 8 नंबर्स मिले न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 1 and 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। सो वी रिटन हियर 2 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 8 जा 16 अपॉन 1। अब आंसर आपका 16 अपॉन 1 आया, बट जब हम उसको होल नंबर में लिखेंगे तब हम 1 नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे आ गया 16, मतलब हमें कितने पीसेस मिले, 16 पीसेस। रीता गेट्स 16 पीसेस। थैंक यू।